अ, आज डिस्कस करने वाला हूँ मैं ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में ये सब पूछे जाते हैं। तो ये ड्रेनेज सिस्टम आज डिस्कस करने वाला हूँ मैं। इसमें रिवर नदियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम। और इसमें हम लोग कुछ रिवर्स और स्पेशली कैसे रिवर सिस्टम को डिवाइड करते हैं इसको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या इंक्लूड किया है मैंने। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है ड्रेनेज पैटर्न का। The flow of water through well-defined channel is known as drainage. Here drainage means the network such as channel is known as drainage system. भारत में कई important rivers हैं और उन सभी rivers का एक पैटर्न बना हुआ है जिसके थ्रू जो है उसमें वाटर का फ्लो होता है और कई सारे उसके ट्रिब्यूटरीज हैं जिसकी चर्चा आगे करेंगे हम लोग। और द ड्रेनेज पैटर्न इज एन एरिया इज द रिजल्ट ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, nature, structure, rocks and topography, slope, etc. About 77% of drainage area consists of the Ganga, the Brahmaputra, the Mahanadi, the Krishna, etc. Oriented towards the Bay of Bengal. So mostly the rivers of Himalayan rivers, mostly they follow through Bay of Bengal, and in other hand 23% comprising Indus, Narmada, Tapi and the Mahi and the Periyar system drainage. Their water flow in Arabian Sea. We have divided into uh, two parts this type of rivers. First part is we can say the rivers that flow in Bay of Bengal and another river that flow in Arabian Sea. If we talk about the complete structure of the river system in India, we have a map of India. Right now I am just going to show you the map of India, which is like in this figure you have already seen in various places the map of India. Today I am going to discuss the river which flow through in Bay of Bengal and in Arabian Sea. This is Arabian Sea, Arab Sagar, you can see AS Arabian Sea, and BOB Bay of Bengal. And most of the rivers you can see here most of the river, it means 77% of drainage area which is goes through in Bay of Bengal, and 23% of rivers or you can say water that flow in Arabian Sea, and the rivers that flow in Arabian Sea is Narmada, Tapi, and the Mahi River and the Periyar River system. These all rivers flows in Arabian Sea, and the Ganga, the Brahmaputra, the Mahanadi, and Krishna. These rivers
flows in a Bay of Bengal. So a river drains in a specific area which is known as the catchment area of that river. We'll discuss about all these after discussing such a river system. An area drained by the river and its tributary is known as drainage basin. And today I am going to discuss the topic which is and the topic or the river which is called Himalayan rivers. I will discuss all these. The boundary lines spreading separating the drainage basin from the other is called as the watershed area. So sometimes what it might be asked you what is the difference between drainage basin and watershed area. Then you have you have to give answer like this: drainage basin and watershed area. और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये रिवर सिस्टम का है, इंडस रिवर सिस्टम का एक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हिमालयन रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं। और ड्रेनेज पैटर्न की बात करेंगे, भारत में कई सारे रिवर्स हैं और उसके पैटर्न अलग अलग हैं। सो उन्हीं ड्रेनेज पैटर्न की बात करेंगे, अलग अलग टाइप्स के रिवर्स होते हैं। और जो पहला यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं मैं, वो कर रहा हूँ फॉलोइंग जो आर द मेजर ड्रेनेज पैटर्न। तो सबसे पहले यहाँ पे है डेंड्रेटिक जो है, इसका मैं एग्जांपल आपको इमेज भी दिखाऊंगा। अ ड्रेनेज पैटर्न विच लुक्स लाइक ट्री ब्रांचेस with lots of twins is known as dendritic drainage pattern. अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल द रिवर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न, मैं आपको सबसे पहले इसका ट्री पैटर्न दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेंड्रिक पैटर्न। सो डेंड्रिक पैटर्न में आपको दिखेगा dendritic pattern that develops on relatively uniform bedrock. ये वृक्ष की तरह आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो किस तरह से यहाँ से ये आकर के ट्रिब्यूटरीज होती हैं मोस्टली, और जो हिमालयन रिवर्स हैं वो इस तरह से मेन रिवर्स में आकर के बाकी के छोटे छोटे रिवर्स हैं जो इस तरह से आकर के मिलती हैं, जिसे हम लोग ट्रिब्यूटरी के नाम से जानते हैं, सहायक नदी के नाम से जानते हैं। आप देख पा रहे हैं तो ये है उसका पैटर्न, और ये डेंड्रिक पैटर्न पे आता है और इसी की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप उसके बाद दूसरा हमारा है रेडियल पैटर्न। So radial drainage pattern form when rivers originate from a hill and flow in all directions. For example, the rivers originating from the अमरकंटक। देखिएगा अमरकंटक है, अमरकंटक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे किस तरह से अमरकंटक से रिवर्स कई सारी नदियां निकलती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का भी एक यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं तो ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक माउंटेन है, और अमरकंटक वाला जो पार्ट है मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। तो ये इस तरह से अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, और अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली जो नदी है, आप यहाँ पे एक और भी दिखाया गया है। सपोज करिए कि इस तरह से अगर ये पर्वत श्रेणी हो या ऊंचाई हो, तो ऊंचाई से अलग अलग डायरेक्शन में जो नदियां निकलती है, आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इधर नर्मदा, फिर इधर सोन, फिर इधर महानदी। तो इस तरह से ये ऊंचाई से किसी ऊंचाई से निकलती है। रेडियल पैटर्न डेवलप वन आइसोलेटेड वोल्केनिक और
कोन्स और डोम्स। यहाँ पे मैं आपको रेडियल पैटर्न में दिखाएंगे कि ओरिजिनेट फ्रॉम हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। तो हिली एरिया से ओरिजिनेट होती हैं और सभी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। एग्जाम्पल में अमरकंटक आप देख रहे हैं। उसका सेंट्रीपीटल है। सेंट्रीपीटल जो पैटर्न है, इन दिस टाइप ऑफ पैटर्न यू कैन सी हियर फॉर्म व्हेन रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इनटू अ लेक और डिप्रेशन, और फॉर एग्जाम्पल लोकटक लेक इन मणिपुर। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे एक इमेज बना के दिखाता हूँ। इधर से एक माउंटेन है, हिल है, इधर से हिल है, और कई सारे, और बीच में जो है एक लेक है। अब इधर का वाटर पूरा आकर के इस लेक में फ्लो होता है, इधर से भी इस लेक में फ्लो हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि लोकटक लेक, हालांकि लोकटक के फीचर्स को मैं लेक्स ऑफ इंडिया में डिस्कस करूंगा, वहां पे भी मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। तो सेंट्रीपीटल में क्या होता है, दो तरह, अब जब रेडियल और सेंट्रीपीटल में डिफरेंस अब आपको समझ में आ गया होगा। जब एक माउंटेन से कोई रिवर निकल करके इधर की तरफ, बाहर की तरफ जाती है और किसी दूसरी नदियों की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, सहायक नदी बन जाती है। जैसे मैंने बात की अमरकंटक से, तो अमरकंटक से रिवर निकलने की बात है। तो इधर आप देखेंगे कि एक तरफ सोन और दूसरी तरफ नर्मदा। तो ये दो रिवर्स हैं, माउंटेन से निकल, इधर से महानदी भी निकलते हैं। इन सब के बारे में आगे मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। सो ये लोकटक सेंट्रीपीटल में है, मींस कि चारों तरफ से पहाड़ी, और उन सब पहाड़ियों से जो छोटी छोटी रिवर्स निकलती हैं वो आकर के इस लेक में मिल जाती है। अगला है यहाँ पे आप देख रहे हैं टेरेल्स। ट्रेलिस जो है, आप ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ मेन रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन देम एट राइट एंगल। इसका भी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है इसकी ट्रिब्यूटरी है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेलिस पैटर्न का, कि यहाँ पे जो नदियां हैं वो किस तरह से 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काटती है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न डेवलप्स ऑन हाईली ज्वाइंट बेड रॉक्स। ये रेक्टेंगुलर है। उसके बाद ट्रेलिस है, ये आप देख पा रहे हैं, उसकी ट्रिब्यूटरी आकर के 90 डिग्री पे मिलती है। सो इस तरह से ये ड्रेनेज पैटर्न का आप डायग्राम देख पा रहे हैं, और आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हो गया ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ मेन रिवर्स फ्लो पैरेलल टू ईच अदर, राइट। सो इस तरह से जो है हिमालयन रिवर्स के कुछ पार्ट हैं। फॉर एग्जांपल रिवर्स इन द अपर पार्ट ऑफ द हिमालयन रीजन्स। तो ये ड्रेनेज पैटर्न का कुछ पैटर्न था जिसे हमने डिस्कस किया। और अब आगे आते हैं और देखिएगा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज। ड्रेनेज को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, किस तरह से डिवाइड किया जाता है, उसके बारे में है यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक, द इंडियन ड्रेनेज इज क्लासिफाइड एज हिमालयन ड्रेनेज एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज। अब यहाँ पे हिमालयन ड्रेनेज और पेनिनसुलर ड्रेनेज डिस्कस करना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कैसे आप हिमालयन ड्रेनेज और पेनिनसुलर ड्रेनेज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं भारत का एक मैप ड्रॉ करूंगा, सो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरह से है। तो ये इंडिया है हमारा, मैं जिसे ड्रॉ करने जा रहा हूँ, और उतना अच्छा तो नहीं बट अंडरस्टैंडेबल होगा आप लोगों के लिए कि ये भारत, और इस भारत में जो है दो पार्ट में ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा मैं यहाँ से ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। और कर्क रेखा के इधर जो ये वाला क्षेत्र है,
आप यहाँ पे विंध्यन रेंज भी ले सकते हैं, विंध्यन रेंज के नॉर्थ साइड और साउथ साइड। तो ये इधर की जितनी नदियां हैं, मीन्स की कर्क रेखा से उत्तर की, जो हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या फिर हिमालय से निकलती है इधर अरब सागर में भी गिरती है ना। इन सभी रिवर्स की चर्चा अभी करेंगे। तो ये जो सारे रिवर्स हैं, ये जो हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी या फिर इधर की तरफ गिरती है, उसे हिमालयन ड्रेनेज कहते हैं। और पेनिनसुलर ड्रेनेज जो है, प्रायद्वीपीय प्रदेश की नदियां। तो प्रायद्वीपीय प्रदेश की नदियों में यहाँ आप देखेंगे कि जितने भी कर्क रेखा से दक्षिण में जो नदियां हैं, वो सभी प्रायद्वीपीय प्रदेश की नदियां कहलाती हैं। और उन प्रायद्वीपीय प्रदेश में जो नदियों में जो पानी होता है, वो मौसमी होता है। और ये कह सकते हैं, अगर डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स, तो यहाँ पे दो डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। हिमालयन ड्रेनेज जो है, इसमें पूरे वर्ष भर वर्षा का पानी होता है, या पूरे वर्ष भर इसमें पानी होता है। लेकिन जब पेनिनसुलर ड्रेनेज की बात करते हैं, तो पेनिनसुलर ड्रेनेज में बारिश के मौसम में तो जल होता है, लेकिन गर्मियों में इसके जल जो है वो सूख जाते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा हिमालयन ड्रेनेज को, और बाद में उसके बाद हम लोग पेनिनसुलर ड्रेनेज या पेनिनसुलर रिवर्स पे आएंगे। पहले यहाँ पे हिमालयन ड्रेनेज है, और द मेजर हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम आर द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो आज की क्लास में द इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से इंडस रिवर सिस्टम को मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पे। सो द इंडस, सबसे पहले तो ये जो है, मैं आपको ये मैप दिखाना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये पूरा हमारे भारत का कुछ पार्ट है जो यहाँ पे है, जिसे मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊं कि ये भारत का क्षेत्र है। और यहाँ से शुरुआत होती है। देखिए, ये जो है ये बॉर्डर है भारत का, इस तरह से गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र, और ये चाइना, अक्साई चीन, और ये इंडिया। सबसे पहले जो यहाँ पे आप देखते हैं इंडस, तो ये इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। और ये मैं आपको माउंट कैलाश पर्वत, और यहीं पे मानसरोवर झील, मानसरोवर लेक, ठीक है। और इसी के ये पूरा पूरा क्षेत्र जो होता है, अगर मैं भारत की बात करूं, तो इसको अगर मैं इधर ले जाऊं और ऐसे, और फिर ये थोड़ा सा इधर आकर के, और फिर ऐसे, और फिर थोड़ा सा नीचे चला जाएगा ऐसे। तो ये सब जो है इंडिया का पार्ट है। और इन इंडिया इसमें देखेंगे आप, तो यही ये सिंधु नदी है, जिसे इंडस रिवर के नाम से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है जहां से ये ओरिजिनेट हो रही है। और यहाँ पे आपको मैं हाईलाइट कर दूं थोड़ा सा, तो ये सिंधु नदी, इंडस रिवर, ऐसे। और यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू ही कई सारे इसकी सहायक नदियां दिख जाएंगी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि ये नुब्रा वैली है, और इसी नुब्रा वैली से निकलने वाली एक रिवर है जिसका नाम है श्योक रिवर। ये रहा श्योक। तो ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है।
और इस तरह से ये इधर की तरफ आते हुए, और देखिएगा यहाँ पे स्वात घाटी है, ये स्वात अफगानिस्तान से एक काबुल रिवर ऐसे आती है ना, और ये भी करके सिंधु नदी में मिलती है, और ऐसे ये इस्लामाबाद होते हुए और ये इंडस रिवर आ रही है ऐसे। और ठीक है, तो ये इंडस का मेन है। इसके भारत से जो है 5 नदियां जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे झेलम रिवर है जो भारत और पाकिस्तान की प्राकृतिक सीमा बनाती है, हालांकि ये यहाँ पे है, ठीक है, और इससे आगे तक हमारा ये क्षेत्र है, और इस तरह से। और इसमें देखेंगे आप चेनाब रिवर है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ठीक है। तो ये सब जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, और इन्हीं 5 नदियों से घिरे हुए क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है ना। तो ये 5 नदियां हैं, रावी, सतलज, ब्यास, झेलम, ठीक है। तो इन सभी रिवर्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले द इंडस, सिंधु नदी। देखिएगा जो सिंधु नदी का ये नाम है इंडस, वो पड़ा है जो इंडिया का जो नाम है इंडिया, वो इंडस से ही निकला हुआ नाम है, ठीक है। और यहीं पे भारत की जो सभ्यता है, पहली सभ्यता आप कह सकते हैं, जिसका विकास हुआ था, जिसको आज भी हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। चूंकि ये सिंधु नदी के किनारे ये इस सभ्यता का विकास हुआ था, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा जो सिंधु नदी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कैसे फ्लो करती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इट फ्लोज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इट्स सोर्स ग्लेशियर्स ऑफ कैलाश रेंज, ठीक है, माउंट कैलाश से ओरिजिनेट होती है, और कभी कभी आपको दिखेगा कि लेक मानसरोवर, मानसरोवर के निकट ही कैलाश रेंज है, जहां से ये ओरिजिनेट होती है, निकलती है, और टिल द नंगा पर्वत रेंज, और उसके बाद आगे बढ़ती है। इट्स लेंथ इज अबाउट टू 2900 किलोमीटर। जो टोटल सिंधु नदी का लेंथ यहाँ पे दिखाया गया है 2900 किलोमीटर। इस टोटल ड्रेनेज एरिया इज अबाउट 1,65,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। और मोर देन हाफ ऑफ इट्स जो सेमी रेड प्लेन्स हैं वो पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इट इज ज्वाइंड बाय धार रिवर्स नियर इंडो चाइना बॉर्डर, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर में से होते हुए आगे बढ़ती है, और लद्दाख और जास्कर रेंज से होते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान होते हुए, गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वर्तमान में अगर देखेंगे तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इस डायग्राम को, इस मैप को हमने डिस्कस किया है। आगे सिंधु नदी के और फीचर्स को देखते हैं। सो यहाँ पे है द एवरेज एलिवेशन ऑफ एलिवेशन एट विच द इंडस फ्लो थ्रू जम्मू कश्मीर, जो है इस 4000 मीटर की जो समुद्र लेवल से जो ऊंचाई होती है, वहां से ये इतनी ऊंचाई से वो फ्लो करती है। इट इज ज्वाइन बाय जास्कर रिवर इन लेह, लेह में ये जास्कर रिवर को ज्वाइन करती है, जास्कर रिवर से इससे मिलती है, और दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, जो सीटीटी या और भी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें प्रीलिम्स इसको कह सकते हैं। द गिलगिट, गतरांग, द्रास, सिगर,
हुंजा आर द अदर हिमालयन ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो कभी कभी आता है कि इनमें से कौन जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएं कि सिंधु नदी की सहायक नदियां में कौन कौन सी नदियां हैं, तो उन सभी को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, so that you can understand and know the details about Indus River system. It crosses the Himalayas through 5,181 meter deep gorge near Attock। अटक है ये, अटक जो है अफगानिस्तान में है, और लेइंग नॉर्थ ऑफ द नंगा पर्वत, इट टेक्स अ शार्प साउदली बेंड हियर। सो ये जो सारी चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप देखेंगे कि ये हिमालय को क्रॉस करते हुए एक गहरे गॉर्ज बनाते हुए अटक के निकट जो है नंगा पर्वत के पास से होकर गुजरती है। और काबुल रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान ज्वाइन इंडस नियर अटक। ठीक है, तो ये पूरा पूरा आपको ध्यान में रखना है। और कभी भारत से बाहर कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये पूछे जाएं तो आप इजीली इसका आंसर कर पाए, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि काबुल रिवर जो है अफगानिस्तान में सिंधु नदी से ज्वाइन करती है। जस्ट एबव मिठानकोट the Indus receives from Panchand the accumulated water of the 5 eastern tributaries। देखिएगा पंचंद है या पंजाब कहिए इसको, यहाँ पे झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और इन सभी सहायक नदियों को मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, सिंधु नदी की सहायक नदियों को। द रिवर्स इम्पटीज इनटू द अरबियन सी साउथ ऑफ कराची आफ्टर फॉर्मिंग अ ह्यूज डेल्टा। तो ये देखिएगा, एक तो ये कि जो हिमालयन नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है, तो मोस्टली हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्रा हो, चाहे वो सिंधु नदी हो। ये सभी नदियां जो हैं डेल्टा का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी में, सिंधु नदी की मेजर ट्रिब्यूटरी में पहले रिवर की बात करते हैं, झेलम। तो सिंधु नदी हो गई, सिंधु नदी जल बंटवारा हुआ, उसके बाद से 80% इसके जल का जो प्रयोग है पाकिस्तान करता है, और 20% जल के का प्रयोग भारत सरकार यानी कि भारत को है, क्योंकि चूंकि ये उस क्षेत्र में है जहां से भारत में ज्यादातर जनसंख्या जो है इसके मीन्स की टच में ज्यादा नहीं आती है। लेकिन अन्य नदियों की बात करें, जैसे हम लोग अब झेलम की बात करते हैं, तो झेलम हैज इट्स सोर्स इन स्प्रिंग एट वेरीनाग इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे आप कश्मीर वैली में जो वेरीनाग के पास से ये ओरिजिनेट होती है। इट फ्लो नॉर्थवर्ड इनटू वुलर लेक, और वुलर लेक के जल का स्रोत भी है झेलम, है ना। और Wheeler, it changes its course southward at Baramulla. The river enters a gorge in the hills. The river forms steep side narrow gorge through पीर पांचाल रेंज बिलो बारामूला। अब बारामूला के नजदीक में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से गॉर्ज का निर्माण करती है पीर पांचाल रेंज के नीचे। और एट मुजफ्फराबाद द रिवर टेक्स अ शार्प हेयर पिन बेंड साउथवर्ड। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से ये साउथ की तरफ झुक जाती है, और उसके बाद इट फॉर्म्स द इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री फॉर 170 किलोमीटर एंड इमर्जेस एट द पावर पोटवार प्लेटू नियर मीरपुर। तो एक बार मैं डायग्राम यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से ये झेलम रिवर है यहाँ पे बनी हुई है। और ये है, और ये
और यहाँ पे ये बिल्कुल साउथवर्ड झुक जाती है और ये इधर चेनाब नदी की सहायक नदियों में बनती है। सो ये जो है झेलम नदी है और इसके फीचर्स को आगे देखते हैं। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू the spurs of salt range of debouches from emerge from a confined space into the wide open area on the plains near the city of Jhelum. It joins the Chenab at Trimu. ये पाकिस्तान में ही है। The river is navigable about 160 किलोमीटर out of total length 724। तो झेलम नदी का टोटल लेंथ आपको यहाँ पे दिख जाएगा और जिसमें से 160 किलोमीटर जो है वो नेविगेबल है, नौकायन के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे आप सभी रिवर्स को देख सकते हैं जिसको इजी वे में यहाँ दिखाया गया किस तरह से ये इधर है सिंधु नदी और ये आकर के इधर से कई सारी इसकी सहायक नदियां, पहले ये झेलम इधर आकर के मिली और फिर यहाँ से चेनाब, रावी, बियास मीन्स की सतलज और ये सारी नदियां जो हैं इसकी ट्रिब्यूटरी है, सिंधु नदी की सहायक नदियां कहा जाता है इसको। आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान रेंज है और ये थार डेजर्ट है भारत का जो है और ये गनवारी वाला है। जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो गनवारी वाला पढ़ेंगे। और ये धौलावीरा, ये सभी साइट्स जो हैं धौलावीरा या फिर गनवारी वाला, ये सब जो है जब सिंधु सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मोहनजोदारो, तो ये सिंधु सभ्यता की जो ये है क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास बसी हुई सभ्यता थी। यहाँ पे मोहनजोदारो देख रहे हैं पूरी तरह से सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, ये गनवारी वाला और इधर आप देख पा रहे हैं इधर की तरफ यमुना नदी निकली है। तो ये बाद में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आते हैं इन नदियों को। आई थिंक कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। और इन्हीं 5 नदियों से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, चाहे ये सब जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये सब जो नदियों के बीच का क्षेत्र है, ये सब इन सभी नदियों को हम लोग क्या कहते हैं, 5 नदियों से घिरे हुए क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। तो कुछ पंजाब का पार्ट भारत में है और कुछ पंजाब का पार्ट पाकिस्तान में भी है। चलिए, तो ये झेलम हो गया। झेलम के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे चेनाब नदी का। तो चेनाब जो है ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि चेनाब ओरिजिनेट फ्रॉम, ये जो चेनाब नदी है बारालाचा पास से निकलती है, लाहौल स्पीति जो है पार्ट ऑफ जास्कर रेंज। ये माउंटेन रेंज जो है इसको भी आगे आने वाली क्लासेस में मैं डिस्कस करूंगा। और 2 स्मॉल स्ट्रीम्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पासेस, इसके दो इसके आसपास जो है स्ट्रीम्स है, पहला चंद्रा और भागा। ये दोनों चंद्र और भागा मिलकर के ये चेनाब नदी का निर्माण करती हैं। यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम इट्स हेड वाटर्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4900 मीटर, इतनी ऊंचाई पे दो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 स्मॉल स्ट्रीम्स ऑन ऑपोजिट साइड, एक तरफ से चंद्रा और दूसरी तरफ से भागा। The united stream of Chandrabhaga flow in the northwest direction through the Pengi Valley parallel to the Pir Panjal range। ठीक है, और near Kishtwar it cuts deep gorge and it enters the plain area near अखनूर इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये सब जो है ध्यान रखने वाली चीजें हैं जब आप लोग चेनाब रिवर के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब ज्यादा ज्यादा जरूरी है। फ्रॉम हियर इट थोरो द प्लेन्स ऑफ पाकिस्तानी पंजाब टू रीच
Panchand where it joins the Satluj river receiving the water of Jhelum and रावी रिवर्स। और झेलम और रावी रिवर्स आपको यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखा दूं, आप देख पा रहे हैं ये है झेलम रिवर का वाटर भी इसी में, रावी का भी इसी में। तो इस तरह से सारे रिवर्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और फिर जा करके सिंधु नदी में मिलती हैं और फाइनली सिंधु नदी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है। यहाँ पे और भी डिटेल से यह दिया गया है। ये देख पा रहे होंगे सिंधु नदी यहाँ मानसरोवर के निकट कैलाश मानसरोवर, और ये रहा कैलाश मानसरोवर, और यहीं से ये एक सतलज रिवर है, और ये बियास और रावी नदी, चेनाब, झेलम और ये इंडस। ठीक है, तो ये इन सभी नदियों के बारे में, और पूरी सभी नदियां आकर के सिंधु, मुख्य नदी सिंधु में मिल जाती है, और इधर फिर बंगाल के सॉरी अरब सागर में आकर के, ये अरब सागर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और इधर बंगाल की खाड़ी है, और किस तरह से ये नदियों का जाल है ये बना हुआ है। तो चेनाब रिवर के बाद हम लोग आते हैं रावी। द रावी हैज इट्स सोर्स इन कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास। तो ये प्रश्न भी आता है कि रावी नदी के जल का जो स्रोत है वो कौन सा है और कहाँ से वो निकलती है। ये रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है, वहीं से ओरिजिनेट होती है। इट ड्रेन्स द एरिया बिटवीन द पीर पांजाल एंड धौलाधर रेंज। पीर पांजाल से लेकर के धौलाधर रेंज तक के एरिया को ये कवर करता है। आफ्टर क्रॉसिंग चंबा it takes southwesterly turn and cut a deep gorge in धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे है और कहाँ पे है। इट इंटर्स पंजाब प्लेन, पंजाब के मैदानी क्षेत्रों में मिलती है, कहाँ पे मधोपुर में, एंड लेटर इंटर्स पाकिस्तान बिलो अमृतसर, और अमृतसर से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान में इंटर करती है। इट डिवाउंचेज इनटू द चेनाब लिटिल अबव रंगपुर इन पाकिस्तानी पंजाब। ठीक है, तो ये चेनाब नदी में आकर के मिल जाती है। अगला है हमारा ब्यास, काफी छोटा सा। वैसे अगर देखेंगे तो द ब्यास ओरिजिनेट नियर रोहतांग पास। मैं एक बार दोबारा से आपको यहाँ पे दिखा दूं, दोबारा से ये इमेज जो है आपके लिए। तो ये ब्यास की बात हो रही है, तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, ब्यास नदी दिख रही है। तो ये ब्यास है, ये अमृतसर और इस तरह से आगे बढ़ते हुए ये मेन सतलज रिवर में, ये लेक मानसरोवर से ऐसे सतलज रिवर आती है, और सतलज रिवर की ही सहायक नदी यहाँ पे भारत में ही मिल जाती है ना। तो प्रश्न अगर आ जाए कि कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदियों में कौन सा है या सतलज की सहायक नदी में, तो ये ब्यास है जो भारत में ही सतलज में मिल जाती है। और फिर इस तरह से ये सतलज की जो मेन जलधारा है वो इन सभी को, चाहे वो रावी हो, चेनाब हो, झेलम हो, सभी का आप देख पा रहे हैं जो है सभी को अपने आप में मिलाता है। और इस तरह से ये देखेंगे, ये है पंजनंद। ठीक है, यहाँ पे सभी पांचों नदियां मिलती है, इसीलिए इसे पंजनंद कहा जाता है। ठीक है, तो आगे ये है ब्यास रिवर। इट
crosses Doladhar range and takes southwesterly direction to meet the Satluj river Harike in Punjab. It is comparatively a small river which is only 460 km long but lies entirely within the Indian territory. तो पूरी तरह से इंडियन टेरिटरी में जो है ये रिवर है जिसको ब्यास रिवर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सतलज रिवर की। ये जो है सिंधु नदी तंत्र की अंतिम नदी है और भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कई सारे डैम्स जो हैं इसके ऊपर बने हुए हैं और द सतलज रिवर फॉर्म द मानसरोवर राकस लेक। मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है, निकलती है, राकस ताल बोलते हैं हिंदी में, वहां से निकलती है और 4570 मीटर विद इन 80 किलोमीटर ऑफ द सोर्स ऑफ इंडस। ठीक है, तो लाइक द इंडस इट टेक्स नॉर्थ वेस्टर्ली कोर्स अप टू द शिपकिला। शिपकिला पास है, दर्रा है। शिपकिला दर्रा के बारे में भी आगे डिस्कस करूंगा ऑन द तिब्बत हिमाचल प्रदेश बाउंड्री। It cuts deep gorge where it precedes the Great Himalaya and the Himalayan range. Before entering the Punjab plain, it cuts a gorge, Naina Devi Dhar, Dhauladhar or Naina Devi Dhar, where the famous Bhakhra Nangal। भाखरा नंगल तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि भाखरा नांगल डैम किस रिवर पे बना है, किस नदी पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो ये सतलज रिवर है। और आफ्टर एंटरिंग द प्लेन इन रूपनगर रोपर, it turns westwards and is joined by the Bias at Harike. From near Firozpur to Fazilka, it forms the boundary between India and Pakistan for नियरली 120 किलोमीटर। तो दो रिवर्स ऐसे आ गए। सबसे पहले झेलम रिवर था। झेलम रिवर भी इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री बना रही थी। और अगला है सतलज रिवर। सतलज रिवर भी 120 किलोमीटर तक पाकिस्तान भारत की सीमा बनाती है। During its onward journey, it receives the collective drainage of Ravi, Chenab and Jhelum and join the Indus few kilometers above the Mithankot. Our total length of 1450 kilometer is follows 1050 किलोमीटर इन इंडियन बाउंड्री। तो सर्वाधिक जो है इंडियन बाउंड्री में ही फ्लो करती है। तो इस तरह से ये सतलज रिवर हो गया। इससे पहले हम लोगों ने रावी देखा, ब्यास देखा, फिर उसके बाद चेनाब। तो ये सारे झेलम है, ये सारे रिवर्स जो हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों में से है जिसके बारे में आज डिस्कस किया। अगली क्लास में जो है मैं गंगा नदी सिस्टम, गंगा नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि यहाँ पे गंगा रिवर है। तो भारत के नदियों को हमने कई भागों में बांटा है। दो भाग कह सकते हैं। पहला भाग जो है हिमालयन नदी का है और दूसरा भाग प्रायद्वीपीय प्रदेश की नदियां। इसका डिवीजन और कई तरीकों से किया जा सकता था बट ये ही दो है। आगे जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ते जाएगी वैसे वैसे इसका डिवीजन मैं आपको